हेलो एवरीवन। यूएस मार्केट में एक सडन पॉलिसी रिवर्सल। यूएसए ने 200 प्लस फूड एंड एग्री गुड्स इंपोर्ट टैरिफ्स को ओवरनाइट रोल बैक कर दिया है। यस, यू हर्ड इट राइट। 200 से अधिक आइटम्स पर लगाया गया टैरिफ ऑफिशियली हट चुका है और यह सिर्फ एक इकोनॉमिक एडजस्टमेंट नहीं, यह हो सकता है मेजर यू टर्न इन यूएस ट्रेड स्ट्रेटेजी। अब सवाल ये है, क्या ये इन्फ्लेशन प्रेशर के कारण लिया गया इमरजेंसी डिसीजन है या फिर अमेरिका की तारिफ डॉक्ट्रिन में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट शुरू हो चुका है? आज हम इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड ग्लोबल ट्रेड इम्प्लीकेशंस को डीप डाइव में समझेंगे। आज के इकोनॉमिक लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव, अमेरिका ने 200 प्लस फूड एंड एग्री गुड्स पर लगाए गए इंपोर्ट टैरिफ्स को तुरंत प्रभाव से रोल बैक कर दिया। यह कदम सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी करेक्शन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड यू टर्न माना जा रहा है। क्या यह अमेरिका की टैरिफ स्ट्रेटेजी रीसेट है या इन्फ्लेशन और वाटर प्रेशर के बीच लिया गया एक पॉलिटिकल मैन्यूवर? आज हम इसके ग्लोबल सप्लाई चेन, यूएस डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और इंडिया सहित इमर्जिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज पर प्रभाव पर बात करेंगे। यूएस ने 200 प्लस आइटम्स पर लगाए टैरिफ्स रोल बैक किए। अफेक्टेड प्रोडक्ट्स: बीफ, कॉफी, बनानास, ऑरेंज जूस एंड प्रोसेस्ड एग्री इंपोर्ट्स। डिसीजन ड्रिवन बाय कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन प्लस डोमेस्टिक वाटर प्रेशर। इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूएस 2.5 to 3 बिलियन तक पोटेंशियल एक्सपोर्ट गेन्स। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड लाटम कंट्रीज ने रिएक्शन दिया। एनालिस्ट: This is a major shift in US trade architecture. 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रेसिप्रोकल टैरिफ डॉक्ट्रिन लागू किया था, जिसके तहत जिन देशों के साथ यूएस का हाई ट्रेड डेफिसिट था, उन पर एलिवेटेड इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी गई थी। इनमें 200 प्लस फूड एंड एग्री आइटम शामिल थे, जिसके कारण ग्रोसरी इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस बर्डन काफी बढ़ गया। अब बढ़ती डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, अपकमिंग स्टेट लेवल इलेक्शंस और वोटर अफोर्डेबिलिटी एंजाइटी ने व्हाइट हाउस को ट्रेड रोल बैक लागू करने पर मजबूर कर दिया। रॉयटर्स ने कंफर्म किया है कि रोल बैक मिडनाइट से इफेक्टिव होंगे एंड टैरिफ्स विल बी डाउन ऑन 200 प्लस आइटम्स। यूएस सीपीआई फूड इन्फ्लेशन अप्रॉक्स 2.7% September 2025 estimate. Export gain for India approx US 2.5 to 3 billion dollars on agri and plantation commodities. Major beneficiaries will be India, Australia, Brazil, Vietnam, Ecuador and Guatemala. CSIS think tanks thinks that this is a signal and attempt to rebuild trade alliances. इस rollback के immediate global implications: trade tensions, de-escalation, supply chain relief in food and agri imports, possible decline in global agro commodity prices. India: coffee, tea, spices, cashew export growth opportunity. Australia: major relief for beef exporters. China may reposition to regain market share. Short-term results of this decision would be grocery prices cooling, better consumer sentiment, export surge for eligible countries. Mid-term outcomes of this decision would be faster bilateral trade negotiations, US agri and manufacturing restructuring, and long-term outcomes of this decision would be shift, tariff war, reciprocal, free trade framework. Countries like India, Vietnam, and Brazil expand export capacity. Possible geo-economic realignment. White House executive order issued confirming tariff rollback. USTR finalized framework deals with Argentina, Ecuador, Guatemala, and El Salvador. RBI announced relief on export credit and loan terms. Australia FM welcome move, but we expect zero tariff direction ahead. Supporters of this decision say rollback is consumer friendly, reduces inflation pressure. Export economies like India benefit, making trade more balanced. This term, critics argue that this reflects policy retreat, shows US couldn't sustain high tariffs, may strengthen China's competitive leverage. Politically timed, not economically strategic. In the next 3 months, trade negotiations accelerate and early export gains are visible due to this shift. And in the next 6 months, consumer price relief, bilateral trade deals will surge. In 12 months, if rivals retaliate or China leverages influence, renewed trade escalation plus supply chain shock. यह रोलबैक सिर्फ एक इकोनॉमिक रिकैलिब्रेशन नहीं है, बल्कि संकेत हो सकता है कि यूएस अब ग्लोबल ट्रेड लीडरशिप को नए मॉडल में रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यदि यह डिसीजन केवल पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हुआ, तो दुनिया एक बार फिर ट्रेड टर्बुलेंस देख सकती है। अब आपकी बारी, कमेंट करें ट्रेड पावर स्ट्रेंथेंड या लीडरशिप एरोडिंग एंड टेल अस व्हाई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डीप डाइव्स।